عالمی یوم حجاب کے موقع پر حجاب نوجوان اور سماجی رویے کے عنوان سے تقریب 4 ستمبر 2020 بروز جمعہ پی سی ہوٹل لاہور میں منعقد ہوئی۔ 3 بجے سے 7 بجے تک جاری رہنے والی اس پروقار تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیغام پاکستان کے تعاون سے منعقدہ پروگرام میں مختلف اداروں نے شمولیت کی، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل، دختران پاکستان، حلقہ خواتین جماعت اسلامی، وزارت بہبود خواتین، انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین، اسکلرز انٹرنیشنل، کلونا مریم، پنجاب یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور، سپیریئر یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی برائے خواتین سیالکوٹ، جی سی یونیورسٹی برائے خواتین فیصل آباد، لیڈز یونیورسٹی اور دار ارقم اسکولز شامل ہیں۔ پی سی ہوٹل میں ہونے والی عالمی یوم حجاب کانفرنس کی صدارت چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل محترم پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کی، جبکہ صوبائی وزیر برائے بہبود خواتین محترمہ آشفا ریاض فتیانہ تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ تقریب کی میزبانی ڈائریکٹر امور خارجہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی نے کی۔ تقریب کے مقررین میں سابق صوبائی وزیر میاں عمران مسعود، معروف تجزیہ کار محترم اوریا مقبول جان، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان محترم امیر العظیم، جی سی یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی، ڈائریکٹر اکیڈیمکس ایف سی کالج ڈاکٹر سمیرہ ملک، پروفیسر اسلامک سینٹر ڈاکٹر اشتیاق گوندل، انچارج اسٹوڈنٹ افیئرز یونیورسٹی آف لاہور امارہ رؤف، ڈائریکٹر دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ڈاکٹر طاہر، پروفیسر یونیورسٹی آف گجرات خلیل الرحمان، ہیڈ چائلڈ رائٹ سینٹر یونیورسٹی آف دی پنجاب ڈاکٹر طارق محمود خان، سی ای او اسکلرز انٹرنیشنل عائشہ سید اور پرنسپل کنگسٹن کالج رائے اینڈرسن شامل تھے۔ دیگر مہمانان گرامی میں سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی محترمہ دردانہ صدیقی، ماہر تعلیم یو ایم ٹی ڈاکٹر ممتاز اختر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر غزالی ایجوکیشن سید عامر جعفری، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب عامر محمود چیمہ، امیر جماعت اسلامی لاہور ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد، پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر احمد شیر اوان، کریٹو ڈائریکٹر سجاد النبی اور این ڈی بانو میموریل ٹرسٹ وسیم اسلم قریشی شامل تھے۔ حجاب ڈے کا انعقاد ہر سال کی طرح اس بار بھی پی سی ہوٹل میں ہوا، جس کی میزبانی ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی نے کی، جبکہ تقریب پی سی ہوٹل کے روح رواں ہاشو فاؤنڈیشن کے صدر محترم صدر الدین ہاشوانی صاحب کی نگرانی میں انجام پائی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت قدسیہ بطول نے حاصل کی، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ عافیہ زاہد نے پیش کی۔ تقریب میں اسٹیج پر میزبانی کے فرائض عائشہ سید اور ڈاکٹر اشتیاق گوندل نے سر انجام دیے۔ سابق رکن قومی اسمبلی اور صدر انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی نے افتتاحی کلمات ادا کیے اور سب معززین کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ کووڈ کے لمبے عرصے کی سماجی دوری کے بعد اتنی بڑی تعداد میں دانشگاہوں کے نمائندوں کا مل کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم حجاب کو صرف ایک گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں سمجھتے، بلکہ ایک پورا نظام عفت و عصمت سمجھتے ہیں۔ ہم نوجوان کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی انتہائی اہم سمجھتے ہیں، اور آج ہم سب زندگی کے ہر شعبے اور اپنے ہر مقتدر ادارے کی سرپرستی کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے بدلتے ہوئے سماجی رویوں پر غور کریں اور انہیں درست سمت کی نشاندہی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوم حجاب دنیا میں مسلمان خواتین کے حقوق کے احیاء کا نام ہے۔ حجاب کی وجہ سے مسلمان خواتین کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے، ہماری ایک ترکش بہن کو پارلیمنٹ کی نشست سے ہاتھ دھونا پڑے۔ چونکہ ستمبر 2003 میں فرانس میں نقاب پر پابندی لگی تھی اور اس کے بعد پورے یورپ میں حجاب کے ساتھ ایک بڑا تعصب برتا گیا، تو جولائی 2004 میں لندن کے میئر لیونگسٹون کی سربراہی میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ساری دنیا سے علماء کو بلایا گیا۔
उस वक्त पाकिस्तान में काजी हुसैन अहमद जमाते इस्लामी के अमीर थे। उन्होंने हल्का ख़वातीन जमाते इस्लामी के साथ मिलकर पाकिस्तान में इस यौम हिजाब को भरपूर तरीके से मनाने का आगाज किया और 4 सितंबर 2004 से इस आलमी यौम हिजाब को पूरे तरीके से मनाया जाता है। दूसरी जानिब हिजाब डे की तकरीब से खिताब करते हुए स्किलर्स इंटरनेशनल की CEO आयशा सैयद का कहना था कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया है, नौजवान हमारी ताकत हैं। ये ऐसी ताकत और सरमाया है कि सारी दुनिया इस पर रश्क करती है। 60% से जायद नौजवान आबादी वाला ये मुल्क इन्हीं नौजवानों की बदौलत दुनिया में तरक्की कर सकता है। ये नौजवान इस मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। जबकि सूबाई वजीर बराए बहबूद खवातीन मोहतरमा आशफा रियाज वित्याना ने तकरीब मुनक्किद कराने पर डॉक्टर समीहा राहील काजी साहिबा को मुबारकबाद दी और कहा कि मैं समझती हूँ आलमी यौम हिजाब सिर्फ यहीं तक महदूद ना रहे और हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ऐसे हर इदारे में मुनक्किद हो जहाँ ख्वातीन हैं, ताकि ये शऊर और आगाही सब तक पहुँच सके। हिजाब को हम सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन का नाम नहीं देते, मैं समझती हूँ ये एक एहतराम भी है। ये सिर्फ लिबास का हिस्सा नहीं, ये आँखों में भी हया और एहतराम का अंसर नुमाया करता है। इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अमारा रऊफ ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दी गई हिदायत और नज़्म व ज़ब्त है। ये एक सिस्टम है, ये गाइडलाइंस हैं जो हमारी जिंदगियों को बेहतर और महफूज बनाने के लिए दी गई हैं। हमें इसको हुक्म खुदावंदी समझकर अताअत करनी चाहिए। मारूफ तजियाकार मोहतरम औरिया मकबूल जान भी तकरीब में शरीक थे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर का सबसे बड़ा मौजू यही है। अमूमन हम ये समझते हैं कि हम वो लोग हैं जो समाज तख्लीक करते हैं, लेकिन हम और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें समाज हम पर नाफिज किया जा रहा है। आज की जदीद दुनिया जिस किस्म की इक़दार और रवायात के तस्वुर को हमारे सामने रखना चाहती है, इसके लिए उसके पास दो अहम जरिए हैं जो रोज हमें बताते हैं कि ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब होगी और अगर ऐसे गुजारोगे तो तुम्हारी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और वो दो जरिए हैं निज़ाम तालीम और मीडिया। हम कितनी भी सादा जिंदगी गुजारना चाहें, हम कितना भी सादा रहन सहन अपनाना चाहें, हमारे घरों में मौजूद 14 इंच का टेलीविजन हमें एक नई दुनिया दिखाता है जो कि मादा परस्त दुनिया है। इस मौका पर डायरेक्टर दावा अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर ताहिर महमूद ने कहा कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो अपने पस मंजर, तह मंजर और पेश मंजर के एतबार से एक अफागीर आलमगीर पैगाम का हामिल है। हिजाब में औरत की इज्जत है, तकद्दुस है, इसकी करामत है। हिजाब औरत के एहतराम का नाम है। हिजाब करने वाली खवातीन हिजाब करते वक्त एक ही बात ज़हन में रखा करें कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। हिजाब के बारे लोगों का दावा है कि ये औरतों की कैद है, हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अगर एक खातून अपनी मर्जी से आज़ादी से बेपर्दा रह सकती है तो एक औरत जो अपनी मर्जी से हिजाब करती है उसको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? सेक्रेटरी जनरल जमाते इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम अमीरुल अजीम ने खवातीन को मुखातिब करते हुए कहा कि हिजाब मुआशरे की तरक्की में कोई रुकावट नहीं, ये सकाफत है, ये तहजीब है, ये तरक्की है। इसके पीछे एक एजेंडा है और वो एजेंडा है इकोनॉमी। और मगरिब में हिजाब को निशाना इसीलिए बनाया जाता है कि इसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर इससे वाबस्ता है, इसलिए इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। हेड चाइल्ड राइट्स सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डॉक्टर तारिक महमूद खान ने मुआशरती रवैये की बात करते हुए कहा कि सोशल या मुआशरती रवैया जब पैदा होता है तो इसके लिए मुख्तलिफ तरह की चॉइसेस की जरूरत होती है। हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस तरह से है कि 80% से जायद आबादी इस स्टेटस में बस रही है जहां चॉइसेस ही नहीं, लेकिन वहां भी चॉइसेस पैदा की जा सकती हैं। एक माशरे में एक माँ मॉडल होती है, माँ बच्चों की चॉइस का ख्याल रखती है, इसीलिए इस सिस्टम में माँ बतौर मॉडल पेश की जा सकती है।
तकरीब में शरीक डायरेक्टर एकेडमिक FC कॉलेज डॉक्टर सुमेरा मलिक का कहना था कि हमारी सोसाइटी हम बनाते हैं, सोसाइटी बाहर से बनकर नहीं आती। बच्चे के 2 उस्ताद होते हैं, एक वो घर से सीखता है और फिर वो स्कूल आता है जहां उसकी पर्सनालिटी रिफाइन होती है। लर्निंग के 3 तरीके हैं जिससे कोई भी बच्चा सीखता है। बच्चा देखता है, सीखता है और उसे मॉडल करता है। इन तरीकों पर अमल करते हुए मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए बतौर इंसान और बतौर उस्ताद बेहतरीन शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने मुआशरे की तश्कील के लिए बेहतरीन लाए अमल दिया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात खलीलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि मुआशरे की बुनियाद घर है। अगर हम अपने मुआशरे को किसी भी पहलू से देखें, चाहे वो तालीम हो, हिजाब हो, तहजीब हो, ये सारी चीजें मिलकर समाज बनता है। इस्लाम का ये खासा है कि ये समाज को खुदी पर कायम करता है। जब तक हम में खुदी थी तो हम सबसे आगे थे, और जब से हमने खुदी को छोड़ा है, हम तालीम से लेकर तहजीब तक हर चीज में पस्ता होते चले गए। दुनिया की सो कॉल्ड मुआशरत में औरत को सरे बाजार ला कर खड़ा कर दिया है और हम उनको आइडियल समझना शुरू हो गए हैं। प्रिंसिपल किंगस्टन कॉलेज राय एंडरसन ने अपना इस्लाम कबूल करने के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मेरा इस्लामी नाम मोहम्मद यूसुफ है। उन्होंने कहा कि मैं जापान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। मुझे वहाँ किसी ने बताया कि अजान की आवाज बहुत खूबसूरत होती है। मैंने भी अजान सुनी, उसने मेरे जहन पर बड़ा गहरा असर डाला। मैं इसके सहर में खो गया और फिर मेरा दिल बदलता चला गया। जापान में मेरा मुसलमानों से इतना ताल्लुक नहीं रहा। फिर जब मैं यरूशलेम गया और वहाँ गोल्डन डोम में मुसलमानों से मुलाकात हुई, उसके बाद इस्तांबुल की नीली मस्जिद का दौरा किया, वहाँ मुझे महसूस हुआ कि रूहानियत क्या चीज है। उस मस्जिद का फर्श, उसकी रोशनियाँ सहर अंगेज थी। उसके बाद किंगस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर मैं पाकिस्तान आ गया। उन्होंने समाजी रवैये पर रोशनी डालते हुए कहा कि यहाँ के तालीमी निज़ाम का जायजा लिया जाए तो यहाँ सबसे बड़ी मनफी चीज जो मैंने देखी है वो है स्मार्टफोन एडिक्शन। छोटे बच्चे स्मार्टफोन का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। वालिदैन स्मार्टफोन के मुज़िर असरात पर गौर नहीं कर रहे। मुआशरे की इस्लाह के लिए जरूरी है कि वालिदैन बच्चों को आज की जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की अफादियत और नुकसानात से आगाह करें और उनको नित नए स्किल सिखाने पर तवज्जो दें ताकि ये बच्चे कौम का बेहतर मुस्तकबिल बन सकें। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने अपने खिताब में कहा कि GC यूनिवर्सिटी में हरासमेंट को मुकम्मल खत्म करने के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता बनाया है। इसी के तहत GC ने खातीन तलबा के लिए मुकम्मल आज़ादी रखी है। वो हिजाब या किसी भी किस्म का लिबास पहनकर तालीम हासिल कर सकती हैं और उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। साबिक सूबाई वजीर मियां इमरान मसूद ने डॉक्टर समीहा राहील काजी साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये आलमी यौम हिजाब का इनेकाद उनकी कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और ये सलाहियतें उनको विरसे में मिली हैं। मैं असेंबली में रहा हूँ और वहाँ काजी हुसैन अहमद साहब को हमेशा हमने इस्लाम और इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए कोशां देखा। उन्होंने कहा कि औरतों को हिजाब लेते हुए किसी भी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। हिजाब हमारी इस्लामी इक़दार और रवायात का पासदार है। आखिर में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल मोहतरम किबला अयाज ने खुतबा सदारत में डॉक्टर समीहा राहील काजी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि यौम हिजाब इसलिए मनाना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि इस वक्त मादा परस्ती के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें खानदान की इकाई को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिससे हम अपने माशरती, सकाफती और इस्लामी इक़दार से दूर हो रहे हैं। इसके लिए बार बार तज़कीर और याद दहानी के तौर पर यौम हिजाब का मनाना बहुत अहम हो गया है। तकरीब में रेहाम काजी की जानिब से प्लेट मिथ के नाम से चीज प्लेटर का स्टॉल भी लगाया गया।
جس میں مختلف انواع کی غذائیت سے بھرپور کھانے شامل کیے گئے۔ مہمانوں نے اسٹال کا دورہ کیا اور پلیٹ سمتھ کی تعریف کی، جبکہ ریحام قاضی کی جانب سے تقریب کے شرکاء میں پلیٹ سمتھ کے کمپلیمنٹری باکسز بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل نے تقریب میں شرکت کرنے پر مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔